Hello students, welcome once again in our unit number 4, chemical bonding and molecular structure. In last session, we continue with our point is the valence shell electron pair repulsion theory, or in shortcut it's called as an VSEPR. We know that the main postulates of VSEP are the shape of a molecules, which is depends upon the number of valence shell electron pair, like bonded or non-bonded around the central atom. Number 2, pairs of electrons in the valence shell repel one another because their electron clouds are negatively charged. Third one, these pairs of electrons tend to occupy such a position in space that they minimize repulsion and maximize distance between them. Next one, the valence shell is taken up as a sphere with the electron pair localizing on the spherical surface at the maximum distance from one another. Next one, a multiple bond is treated as if it is a single electron pair, and 2 or 3 electron pairs of a multiple bonds are treated as a single super pair. And when 2 or more resonance structures can represent a molecule, the VSEPR model is applicable to any such structure. And we know that the repulsive interactions of the electron pair decrease in the order lone pair having a maximum repulsion compared to the lone pair bonded pair, and lone pair bonded pair having a more repulsion than the bonded pair and bonded pair. So these are the highlights of our last sessions. And for the predictions of geometrical shapes of molecules with the help of VSEPR theory, so we know that it's convenient to divide molecules into 2 categories. First is the molecules in which the central atom has not have a lone pair, and number 2, molecules in which the central atom has a one or more lone pairs. So according to this point, right, if a central atom does not having a lone pair, so the geometries of some molecules or ions of the type which is given in the table, in this table, right? So now we move to this table, but before we move to this table, so what are the advantage of VSEPR theory? The VSEPR theory is able to predict the geometry of a large number of molecules, especially the compounds of p block elements accurately. It is also quite successful in determining the geometry accurately even when the energy difference between the possible structure is very small. So the theoretical basis of VSEPR theory regarding the effects of electron pair repulsion on a molecule shape is not clear and continue be a subject of doubt and discussion. So we start with a geometry of a molecules in which the central atom, okay, has a no lone pair of electrons. तो अभी हमें जो ये टॉपिक हमें यहाँ पे दिखाया गया है, तो ये टॉपिक में हमें ये देखना है कि देयर आर वेरियस टाइप ऑफ द, ये जो टेबल है ना, मैं आपको 2 बार पढ़ाऊंगा. पहले मैं अभी जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाना चाहता हूँ वो मैं VSEPR की वजह से पढ़ाना चाहता हूँ. बाद में मैं हाइब्रिडाइजेशन से यही टॉपिक है ना वो मैं उसको यहाँ से कंटिन्यू कर दूंगा. ठीक है, तो आपको 2 बार इसका जो है आपको देखने मिलेगा. मैं देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मेरे पास मॉलिक्यूल्स है, मेरे पास एक एटम A है विदाउट एनी लॉन पेयर्स, एंड द ज्योमेट्री उसकी जो मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ, तो मैं देखिए मैं यहाँ पे मैं एक आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ AB2 स्टाइल वाला मॉलिक्यूल दिखा रहा हूँ. यानी मैंने सेंट्रल एटम A है और उसके जो एडजेसेंट्स में भी यानी 2 बॉन्ड से जुड़े हुए हैं. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इसमें कितने हो जाएंगे, जैसे मैं AB2 में आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, तो कितने हो जाएंगे आपको, तो कि AB2 कुछ इस तरह से दिखेगा ना मुझे कि मेरे पास A है और दूसरा यहाँ पे बॉन्ड B है और यहाँ पे भी बॉन्ड B है और उसके पास कोई लॉन पेयर नहीं है. तो दोनों बॉन्डेड पेयर स्पेस में किस तरह से रहेगी, तो उसको रिपल्सन कम होने का मैक्सिमम बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री. यानी ये जो आप देख रहे हैं उसका जो ये बॉन्ड एंगल है, यहाँ से यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है वो हमें दिखाई दे रहा है 180 डिग्री का.
आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे यहाँ पे एम यहाँ पे इसने AB2 की बजाय M दिया हुआ है और ये बॉन्डेड पेयर है और ये भी बॉन्डेड पेयर है। अब देख रही है यहाँ पे आपको थोड़ा दो डॉट्स है ना वो दिखाई देंगे। तो मैंने इस तरह से बताया हुआ है, आपके टेक्स्ट बुक में इतना अच्छा शेप नहीं दिया हुआ है। मैं तो आपको अभी मेरी तरफ से भी मॉडल्स का मैं भी यूज अच्छी तरह से कर रहा हूं। तो BeCl2 का एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए इन द केस ऑफ BeCl2 क्या होता है। सो इन द केस ऑफ दूसरा भी एक एग्जांपल्स मैं यहाँ पे डाल रहा हूं और वो है HgCl2, यानी मर्क्यूरी क्लोराइड का भी यहाँ पे हम एग्जांपल्स ले सकते हैं। आपको क्या करना है तो कि यहाँ पे Be रखना है, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, ठीक है। तो BeCl2 का इस तरह से एग्जांपल हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ बेरिलियम है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है और ये बॉन्डेड पेयर है। तो दो बॉन्ड हो और इसके पास कोई भी लॉन पेयर न हो, क्योंकि ये टेबल है ना बिना लॉन पेयर वाला है। सेंट्रल एटम डज नॉट हैविंग अ लॉन पेयर, सो द बॉन्ड एंगल इज 180 एंड द शेप इज लीनियर इन नेचर। तो ये लीनियर नेचर में चला जा रहा है। मैं आपको इसका एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा हूं। देखिए मैं थोड़ा आपको पहले कंफ्यूज करूंगा। इसका बॉन्ड एंगल क्या है, देखिए आप सोचिए क्या होगा। आप वीडियो को पॉज करके देखिए। ओके, इसका बॉन्ड एंगल ही नहीं है, क्योंकि एक बॉन्ड में बॉन्ड एंगल नहीं होता है। बॉन्ड एंगल के लिए मुझे मिनिमम दो बॉन्ड तो होने चाहिए, बिकॉज देयर इज अ बॉन्ड एंगल बिटवीन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर टू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। ये मैंने H2 का जो मॉलिक्यूल्स दिया था, तो उसमें तो कोई बॉन्ड, कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं कि सर द शेप ऑफ द H2, ये जो H2 का शेप है ना सर जी वो लीनियर है। नहीं, इसका लीनियर है ही नहीं, ये सिंपल ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये लीनियर नहीं है। लीनियर तो कब होगा, जब मुझे AB2 स्टाइल मुझे लेनी पड़ेगी। जैसे मैं AB2 आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, मैं आपको ये दिखा रहा हूं। देखिए ये जो है मैंने अभी जो आपको दिखाया है वो BeCl2 का शेप मैंने दिखाया। ये जो बीच वाला है ना वो बेरिलियम है सॉरी, और ये दोनों क्लोरीन है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड आप दिख रहे हैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, सो देयर इज अ बॉन्ड एंगल। यहां से हम यहाँ का बॉन्ड एंगल देखेंगे तो वो कितना मुझे मिलेगा, 180 डिग्री का मिलेगा, यानी ये लीनियर शेप में चला जाएगा। तो मैं दो तरह से, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में भी आपको दिया हुआ है, लेकिन हमारी जो टेक्स्ट बुक है ना NCERT, उसमें इतना अच्छा नहीं दिया हुआ है। मैंने आपको कल भी बोला था कि अभी जो मैं अपनी आपको समझाने के लिए जो मैं बुक यूज कर रहा हूं ना, वो इंटरनेशनल लेवल की है, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, और आप भी थोड़े इंटेलिजेंट बच्चे है ही, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने जेडी ली है, फ्रायल है, राइट, तो उसकी जो बुक है वो मैंने यहाँ पे यूज की हुई है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे BeCl2 है, HgCl2 का मैंने शेप यहाँ पे ये आपको बताया हुआ है। आपको पता चल गया होगा कि मॉलिक्यूल्स विथ नो लॉन पेयर्स ऑफ सेंट्रल एटम की मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी let us only consider the molecules made up of two types of elements A and B. Then the molecule will have the general formula ABX. तो ABX की मुझे मिलेगी where X is equal to 1, 2, 3. So this table 4.8 here gives some examples of such molecules or ions along with the number of lone pairs and their arrangement and geometry. तो आपको इसमें पता चल गया है, ठीक है। अभी मैं दूसरा आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। दूसरा जो मेरे पास है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितनी है, 3 है। यानी जो मॉलिक्यूल्स में अभी आपको दिखा रहा हूं वो किस टाइप का है, तो वो है AB3 स्टाइल का मॉलिक्यूल्स मैंने दिखाया हुआ है। तो AB3 को हमें रखना पड़ेगा, तो इस तरह से हम रख सकेंगे ना, ये A है, ये B है, ये भी B है, ये भी B है। तो इस तरह से तीनों को रखे कि ताकि मिनिमम रिपल्सन हो सके। देखिए यहाँ पे रिपल्सन कम होगा या यहाँ पे होगा, तो कि यहाँ पे ज्यादा होगा और यहाँ पे कम होगा। ये देखिए आप तो इसको तो पता, लेकिन यहाँ पे 3 को रखना ही है मुझे, तो ये बेस्ट एंगल है उसका। जो आप देखिए यहाँ पे एंगल है 120, 120 और 120 का एंगल्स मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आपको जो ये शेप में यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो कुछ इस तरह से होगा ना। यहाँ पे आप देखिए ये तीनों लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे भी लॉन पेयर है, यहाँ पे भी लॉन पेयर है, यहाँ पे भी लॉन पेयर है। देखिए मैं यहाँ से जैसे एक जुड़ना चाहता हूं, तो इस तरह से कुछ आपको फिगर मिलेगी। आपको ये बॉन्ड एंगल दिखाई दे रहा है, 120 का बॉन्ड एंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि उसका शेप देखिए, उसका शेप कैसा है, तो क्या ट्राइगोनल प्लेनर है या प्लेनर ट्राइंगुलर है, कुछ भी बोल सकते हैं। कई बार इसको इस तरह से भी लिखा जा रहा है कि ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर भी इसको लिखा जा रहा है। उसमें मैं कई एग्जांपल्स दे सकता हूं, जैसे BCl3 है, BF3 है, कोई भी एग्जांपल्स आप यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे आपको ये एग्जांपल्स BF3 का दिखाना चाहता हूँ। मैंने कल भी आपको दिखाया हुआ था, आप देखिए ये BF3 का एग्जांपल्स है, आप अच्छी तरह से देख लीजिए। ये बोरोन है, ये लॉन पेयर है, सॉरी ये बॉन्डेड पेयर है, बॉन्डेड पेयर है, बॉन्डेड पेयर है, ये बिल्कुल एक प्लेन पे ही पड़ा हुआ है और ये ट्राइंगल बना रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्लेनर है और ट्राइगोनल प्लेनर है। बॉन्ड एंगल 120 का है, 120 का है, 120 का है। आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो मैं बता रहा हूं, जैसे ये क्लोरीन है, ये बोरोन है, ये क्लोरीन है, ये बोरोन क्लोरीन है, ये बॉन्ड है, बॉन्ड सभी एक प्लेन में ही खड़े हुए हैं। जैसे फैन हम देख रहे हैं तो उसका जो फ्लैप्स होता है तो उसको इसी तरह से वो ये हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको ये भी पता चल गया। मैंने अभी जो 2 वाले का और 3 वाले का मैंने यहाँ पे आपको डिस्कशन किया हुआ था। ठीक है, अभी मैं एक और आपको एग्जांपल्स यहाँ पे देना चाहता हूं। अभी वो हम 4 लोगों को जोड़ना चाहते हैं, जैसे 4 लोगों की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे। जैसे मेरे पास 4 है, तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे A है और यहाँ पे B B B B, यानी मैं अभी जो स्टाइल आपको दिखा रहा हूँ वो AB4 स्टाइल होगी, AB4 स्टाइल है, राइट। तो AB4 स्टाइल में आप देखिए कि यहां से देखिए, अब यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे उसने ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर्स यहाँ पर, सॉरी टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसका जो शेप है और उसका जो बॉन्ड एंगल मुझे मिलेगा वो कितना मिलेगा मुझे, तो जैसे मैं यहाँ पे ऐसे, मैं कुछ ऐसी तरह से भी दिखा सकता हूँ ना आपको, देखिए ये यहाँ पे ऐसे हो गया है, राइट। ओके, ये जो बीच में है हमेरा, वो हमेरा A है और यहाँ पे है वो लॉन पेयर है, लॉन पेयर है, लॉन पेयर है, लॉन पेयर है। अभी हम उसको उसके साथ जोड़ना चाहेंगे, जैसे हमने जोड़ दिया है, तो 109 डिग्री 28 मिनट्स का उसका बॉन्ड एंगल मुझे मिलेगा। एक्यूरेट बॉन्ड एंगल ये है, 109 डिग्री 28 मिनट्स का है, टेट्राहेड्रल है। क्यों टेट्राहेड्रल है, क्योंकि ए टेट्राहेड्रॉन इज अ पिरामिड शेप, ये पिरामिड शेप का है। इट हैज 4 ट्रायंगुलर फेसेस, उसको 4 फेस मिले हुए हैं एंड 4 कॉर्नर्स, सो उसको नाम दिया गया है टेट्राहेड्रल। कई बार बच्चे हमें यहाँ पे पूछते हैं, सर जी देखिए मैं आपको थोड़ा मैथमेटिकली भी, आपको पिरामिड है लेकिन ये जो ऐसा पिरामिड है, क्योंकि पिरामिड का बेस नॉर्मली स्क्वायर होता है, ठीक है, ये जो स्क्वायर को हम बीच में से काट देते हैं, जैसे उसका डायगोनल लेके, तो ये कुछ ऐसा पिरामिडल मुझे मिल रहा है, तो उसको बुला रहे हैं, इसलिए 109 डिग्री 28 मिनट्स का बॉन्ड एंगल है। देखिए ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो मीथेन ही दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो मीथेन है मैं कई तरह से आपको दिखा रहा हूँ, आप ऊपर से देख रहे हैं ना अभी, तो आपको ऊपर से हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, जो बीच वाला जो ब्लैक है वो कार्बन है, ये देखिए सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और चौथा भी सिग्मा बॉन्ड ही है। लेकिन ये जो स्पेस में है ना वो 3 डायमेंशनली पड़ा हुआ है, इस 2 डायमेंशनली नहीं है, ये प्लेनर नहीं है। देखिए एक आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, तो आप कैसे भी रखेंगे तो वो टेट्राहेड्रल ही होगा। 109 डिग्री 28 मिनट्स का उसका एंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैंने जो अभी एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दिया है वो किसका दिया हुआ है, मैंने CH4 का दिया हुआ है। मैं एक और एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ और वो है NH4+। ये भी इस तरह से ही है, ये आयन का है, ये मॉलिक्यूल्स है लेकिन ये आयन टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल है। तो आप देखिए ये भी यही होगा, ये बीच वाला नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, और ऊपर जो उसका जो जुड़ा हुआ है चौथा हाइड्रोजन भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो हम कैसे दिखा सकते हैं, तो इसको NH4 की वजह से भी हम दिखा सकते हैं। तो ये जो हमें आपको यहाँ पे मिल रहा है वो 4 कार्बन की वजह से हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो आपको ये 4, अभी मैं आपको वही मॉलिक्यूल्स दिखा रहा हूं जो सेंट्रल एटम है, वो सेंट्रल एटम में लॉन पेयर नहीं है, ठीक है। अभी मैं 5 और 6 की बात आपके साथ करना चाहता हूं, मैंने कल की थी आपके साथ बात। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं AB5 स्टाइल दिखाना चाहता हूं, AB5 स्टाइल। तो AB5 स्टाइल क्या होगी है, तो कि AB5 स्टाइल कुछ इस तरह से होगी। देखिए ये तो है, ये तो मैंने अभी, और दूसरा ये मैंने ये यहाँ से दिखाया हुआ है। अभी आप देखिए ये बीच में क्या है, तो कि बीच में मेरा A है और यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 और 5 B है। तो उसको इस तरह से हम देखेंगे तो AB5 में 2 बॉन्ड एंगल मिलेंगे। यहाँ का जो बॉन्ड एंगल हम यहाँ से देख रहे हैं वो 90 का होगा और दूसरा 120 का। यहाँ पे जो है 120 का बॉन्ड एंगल है, यानी 120 और 90 बोथ बॉन्ड एंगल्स आर इन AB5। और उसको हम क्या बोल रहे हैं, तो उसको हम बोल रहे हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप उसको बोल रहे हैं। क्यों इसको बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो 2 ये पिरामिड था ना, ये वाला टेट्राहेड्रल, 2 टेट्राहेड्रल मैंने जोड़ दिए है, देखिए। तो दिस फिगर कंसिस्ट ऑफ
टू 3D साइडेड पिरामिड्स जॉइंड बाय शेयरिंग अ कॉमन फेस। उसका एक फेस था, वो कॉमन था, उसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो द ट्रायंगुलर प्लेनर थ्रू द सेंटर, तो वो ट्रायंगुलर प्लेनर है, थ्रू द सेंटर है, और बाई पिरामिडल्स यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये भी शेप यहाँ पे आप देख सकते हैं, PCL5 का शेप मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। दो बॉन्ड एंगल है, 120 और 90। मैंने एक बार आपको कल के लेक्चर में भी बोला था, ये जो पोजीशंस हम ये पोजीशंस देख रहे हैं, एक आप देख रहे हैं, ये एक्सियल पोजीशंस है, और ये जो तीनों है वो इक्विटोरियल पे पड़े हुए हैं, यानी ये एक प्लेन में है तीनों लोग। ये फॉस्फोरस, क्लोरीन और क्लोरीन एक प्लेन में है, और ये फॉस्फोरस के ऊपर के नीचे है, ये प्लेन के ऊपर आ रहा है और एक प्लेन के नीचे जा रहा है। जैसे मैं PCL5 का आपको शेप दिखाना चाहता हूं, तो ये मेरा PCL5 का शेप है। देखिए आपको ये देखना पड़ेगा, ये जो अच्छा इस तरह से अच्छी तरह से आपको दिखाई देगा। जो आपके सामने जो व्हाइट यहाँ पे दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, वो क्लोरीन है, ठीक है। नीचे वाला देखिए, नीचे वाला अभी मैंने क्लोरीन बताया हुआ है, ये तीनों है वो भी क्लोरीन ही है, और बीच वाला जो ब्लू है वो फॉस्फोरस है। तो मैंने PCL5 इस तरह से दिखाया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ से, जैसे मैं यहाँ पे एक बार आपके साथ दिखाना चाहता हूँ, तो द बॉन्ड एंगल बिटवीन दिस, क्योंकि जो अभी वो इक्विटोरियल में है उसका 120 है, लेकिन उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा इसका, तो क्या 90 होगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है TBP का शेप। TBP आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि वो JEE में और नीट का एक स्पेशल क्वेश्चंस है। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि उसको क्यों TBP पे ज्यादा वो क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा रहे हैं। उसमें थोड़ा ड्रेगोज रूल भी हम लगाएंगे, बेंड्स रूल भी हम लगाएंगे, तो कुछ इस तरह से फ्यूचर में आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा और डिस्कशन करना चाहेंगे, ठीक है। फाइन, तो ये मैंने आपको 5 वाला भी बता दिया। अभी जो 6 वाला है, तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं AB6 की पोजीशंस यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। तो AB6 की पोजीशंस क्या हो सकती है, तो AB6 की पोजीशंस कुछ इस तरह से हो सकती है। देखिए मैं यहाँ पे क्या दिखा रहा हूं, आपको पता चला क्या मैंने, ये जो है ना वो पिरामिड है, लेकिन ये पिरामिड से ये पिरामिड अलग है। उसका जो बेस है ना वो प्लेनर है, मींस स्क्वायर है, और दोनों ऐसे पिरामिड को मैंने जोड़ दिया है। सो इट्स ऑक्टाहेड्रल इन नेचर, उसको ऑक्टाहेड्रल बोल सकते हैं, क्योंकि बीच में है वो मेरा A है, यहाँ पे एक B और B हो गए 6। यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, देखिए आप यहाँ पे 1 2 3 4 ये प्लेन पे है, और एक ऊपर और एक नीचे है। देखिए 1 2 3 4 प्लेन में है, ये ऊपर और नीचे है। सो इट्स ऑक्टाहेड्रल इन नेचर। So what is the meaning of octahedral? So an octahedron is an 8-sided figure with 6 corners है। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल बोल रहे हैं। इसका मतलब है 8 साइड है, 4 ऊपर है, देखिए 4 फेस ऊपर है, 4 फेस नीचे है, और कॉर्नर कितने हैं उसके 6 कॉर्नर है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्क्वायर पिरामिड। ये क्या था, ट्राइगोनल पिरामिड था। ये क्या है, स्क्वायर पिरामिड दैट शेयर अ कॉमन स्क्वायर बेस। और उसका एग्जांपल्स मैंने डाला हुआ है SF6 का। तो यहाँ 4 फ्लोरीन है, वो एक ही प्लेन में है, एक ऊपर है एक नीचे है। तो आपको यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल दिखाई देगा वो 90 का ही दिखाई देगा। 90 हर जगह पे 90 है। देखिए मैं उसका आपको एक फिगर दिखाना चाहता हूँ। अब देखिए ये SF6 का मैंने दिया हुआ है। देखिए ये बीच वाला है वो सल्फर है। यहाँ पे जो कितने बॉन्ड दिखाई रहे, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड दिखाई रहे। आप देखिए मैं इस तरह से दिखाना चाहता हूँ। तो 4 है ना वो प्लेन पे है। देखिए ये जो फर्स्ट, ये सेकंड, ये जो थर्ड और फोर्थ मैंने जो यहाँ से पकड़ा हुआ है, तो ये फोर्थ है। 4 4 एक प्लेन पे है, एक ऊपर है और एक नीचे है। देखिए आप, देखा आपने। तो कहीं से भी आप बॉन्ड एंगल देखिए, जैसे मैं यहाँ से यहाँ का बॉन्ड एंगल देख रहा हूँ, मैं यहाँ से यहाँ का बॉन्ड एंगल, यहाँ से यहाँ का कोई भी बॉन्ड एंगल आप देखेंगे ना, तो वो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे हर वक्त 90 का ही मिलेगा। देखिए ठीक है, मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। तो ये ऑक्टाहेड्रल शेप्स है, और उसका जो एग्जांपल्स यहाँ पे हमारी जो बुक ने दिया हुआ है वो SF6 का एग्जांपल्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या आपके साथ यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, अभी कई बच्चे, मैं थोड़ा अभी आपको थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस भी ले जा रहा हूँ। कई बच्चे को ऐसा सर 6 ही तक हो गए, AB7 जैसा कुछ हो नहीं रहा है। हो सकता है AB7 भी हो सकता है। तो AB7 कैसा होगा, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। AB7 कुछ इस तरह से हो रहा है। ये पेंटागन है, 5 कॉर्नर वाला है, पेंटागन है।
उसमें मेरा बीच वाला ए है, यहाँ पे एक भी लॉन पेयर है, यहाँ पे भी लॉन पेयर है, यहाँ पे भी लॉन पेयर है, यहाँ पे भी लॉन पेयर है, और एक है यहाँ से मैं यहाँ पे एक दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे एक और होगा, ये सभी जगह पे बी है, देखिए 2 3 4 5, ओके। एक अभी ऊपर और यह मीन्स एक यहाँ से आप यहाँ से ऊपर देख सकते हो और एक यहाँ से नीचे जा सकता है, तो ऐसा कुछ है, तो उसको हम बोल रहे हैं पेंटागोनल। पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल उसका शेप है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल है। अभी आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसका एग्जांपल है IF7 यानी 5 फ्लोरीन है ना, वो एक प्लेन पे है और छठा और सातवां ऊपर और नीचे से आ रहा है, तो ये IF7 का शेप भी हो सकता है। आप देखिए उसमें, आप एक बार आप अपनी तरह से भी देखिए, मैं थोड़ा आपको होमवर्क भी देना चाहता हूं, इसमें बॉन्ड एंगल क्या हो सकता है आपको मुझे दिखाना पड़ेगा या बताना पड़ेगा, मैं आपको आपके ऊपर छोड़ देता हूं। इसका बॉन्ड एंगल कितना, किसमें, IF7 में, पेंटागोनल बाय पिरामिडल में 2 बॉन्ड एंगल है, 2 बॉन्ड एंगल, एक बॉन्ड एंगल को आपको पता चल ही गया होगा 90 का है, लेकिन ये बॉन्ड एंगल जैसे मैं यहाँ पे BAB का बॉन्ड एंगल क्या हो सकता है आपको बताना पड़ेगा। ये जो 90 है वो एक्सियल पोजीशन का है, इक्विटोरियल पोजीशंस का क्या होगा उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन बार बार ये क्वेश्चन से अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो मेरा ये फर्ज है, मेरा ड्यूटी है कि जैसे जो भी टॉपिक है तो उसको इस तरह से हम ले जा सकते हैं कि भाई जैसे मेरा केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो जाए तो जितना भी केमिकल बॉन्डिंग एंड ऑफ द डे हम पढ़ना चाहे तो उसमें से कोई मुझे दिक्कत न हो, मुझे समझ में बिल्कुल आ जाए। मैंने फजांस रूल में भी आपके साथ इतनी ही डिटेल में बात की थी कि इस डिटेल्स में क्यों मैं जा रहा हूं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वाटर सॉल्युबिलिटीज क्या हो सकती है, फिर मैं आपको दिखा रहा हूं कि जैसे थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो सकती है, तो ये सभी पॉइंट है ना फजांस रूल से जुड़े हुए हैं। लेकिन हमें पता तो होना चाहिए ना कि फजांस रूल में कब यूज करो, कि जैसे कोई आयोनिक कंपाउंड में कितना कोवैलेंसी कैरेक्टर है, इसके लिए हम फजांस रूल है वो देखना चाह रहे हैं। तो आपको थोड़ा उसमें मेरे साथ भी अभी देखना पड़ेगा, और ये फिर से मैं एक बार आपको फटाफट हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। So in a linear molecule, the atoms line in a straight line. The angle formed by the covalent bond between the central atom and 2 surrounding atoms is 180. यहाँ पे वो दिखाया हुआ है। और planar triangular है, 3 atoms are located at the corner of triangle and are bonded to a 4th atom that lies in the center. वो यहाँ पे दिखाया गया है। A tetrahedral molecule is one with the 4 atoms located at the vertex of the tetrahedron and are bound to 5th atom in the center of the structure. और ये जो है वो थोड़ी बात यहाँ पे उसने अच्छी तरह से लगाई हुई है। देखिए, इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मॉलिक्यूल the central atom is located in the middle of the triangular plane shaded by the upper and lower triangular pyramid, and it's bonded to 5 atoms that are the vertices of the figure. So in this type of molecule not all the bonds are equivalent. यहाँ पे सभी बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं है, आप देखिए, क्योंकि जो 3 मैंने आपको दिखाए थे, मैं जो आपको फिर से दिखाना चाहता हूं, ये सभी, कई बच्चे को ऐसा होता है कि सर जी ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, क्योंकि ये तो क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, तो सब नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो 3 बॉन्ड है, ये जो ब्लैक वाला है, वो 3 बॉन्ड सेम है, लेकिन ये जो 2 बॉन्ड है ना वो अलग है, क्योंकि ये एक्सियल पोजीशन में चले गए और ये इक्विटोरियल पोजीशन में है। तो ये जो एक्सियल आपको बताया है और इक्विटोरियल भी बताया हुआ है। सो इन द ट्रायंगुलर प्लेन, जो ट्रायंगुलर प्लेन में होते हैं उसको इक्विटोरियल बॉन्ड्स बोलते हैं, एंड द एंगल्स बिटवीन 2 इक्विटोरियल बॉन्ड इज 120 and 2 vertical bonds pointing along the vertical axis of the sphere are 180. So apart and are called as an axial bond. तो उसका जो एक्सियल बॉन्ड होता है उसका बॉन्ड एंगल इक्विटोरियल बॉन्ड से 90 डिग्री पे खड़े होते हैं, ठीक है। ओके फाइन, जो नेक्स्ट वाला था, सो द octahedron has only 6 vertices and in an octahedral molecule, so we find an atom in the center of the octahedron bonded to 6 other atoms at the vertices. So all the bonds in an octahedral molecule are equivalent with angles between adjacent bond equal to 90. तो ये सभी 90 पे है। तो आज का जो मेरा जो अभी मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहता था, मैंने अभी AB7 का भी आपके साथ डिस्कशन किया हुआ है। तो ये जो टेबल हमारी जो टेक्स्ट बुक में 4.6 की वजह से दिया गया था वो मैंने आपको आज बताया हुआ है। अभी जो मैं नेक्स्ट सेशंस में आपके साथ बहुत थोड़ा अलग
तरह से मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, तो उसका जो मॉलिक्यूल्स विच हैव वन और मोर लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल एटम में एक या एक से ज्यादा लॉन पेयर होगी तो शेप में क्या थोड़ा डिस्टॉर्टेड होगा, क्या हो सकता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस ये पार्ट 2 में से आ सकते हैं, क्योंकि वही सोचना है कि VSEPR, राइट, VSEPR तो यहाँ पे भी लग रहा है, VSEPR तो इसलिए लग रहा है, यहाँ पे भी हमने देखा सभी जगह पे VSEPR तो है, लेकिन यहाँ पे VSEPR बिटवीन बॉन्डिंग पेयर एंड बॉन्डिंग पेयर ही था, because there is no lone pair on the central atom. अभी क्या होगा नेक्स्ट सेशंस में, there is a lone pair. So 3 types of repulsion that we have to observe: bonded pair, bonded pair, bonded pair, lone pair, and lone pair, lone pair. ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आपको एक IF7 का क्वेश्चंस मैंने डाला हुआ था, एक बॉन्ड एंगल जो एक्सियल पोजीशंस में है उसका तो हमें 90 मिला हुआ है, इक्विटोरियल का क्या हो सकता है आप मुझे सोच के बताइए। ठीक है, मेरा जो ये वीडियो है मैं सभी छात्रों से ये मैं गुजारिश करता हूं कि उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब की वजह से क्या होगा, जैसा मेरा कोई वीडियो आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। तो आप अच्छी तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके कोई भी अच्छे, जैसे हमारे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं कोई बच्चे, ठीक है, कोई दूसरी स्कूल में पढ़ते हैं, कोई आपके दूसरे दोस्त है, लेकिन उसको डीप में जाना हो तो आप भी अपना उसको भी बोलिए कि ये सब्सक्राइब करके आप उसका वीडियो देख सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, मैं अपनी तरह से पूरी प्रोसेस कर रहा हूं, तो उसके पास भी से मुझे कोई भी सुझाव आ सकता है, तो आप देखिए और उसको अच्छी तरह से यहाँ पे पढ़ के और उसका जो प्रैक्टिस है वो आप कीजिए। थैंक यू।